So we have understood what is a mirror, what are the different types of mirror. There are the two types. One is the plane mirror and one is the spherical mirror. And in spherical mirror there are two types. One is the concave and one is the convex mirror. तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं आगे बोलो हम इसके साइन कन्वेंशन इसका पूरा डिटेल देयर आर सर्टेन terms which will come across when we start studying this chapter of spherical mirrors. So these terms you should be well acquainted with. So what are those terms? How are you going to describe it? वो सब हम अभी समझने वाले हैं. So are you ready? Yeah? Okay. So सबसे पहले just one sec, huh? I want to find. So very good, Riza and Abdul Ahad. You all are regular to the class. I think Kihan has some connectivity problem and she's always missing her class. But even if you sometimes miss, you can see the video. Okay. So अभी हम करने वाले हैं आगे का part about the mirrors. So the topic is in the chapter light in physics. In science, CBSE, you have the top topic light, which we have started in the previous class. Okay. Now we are going to do the spherical mirrors. Plane mirrors तो हमने बात कर लिए, that we have finished it up. Now we are going to do spherical mirrors. As the name suggests, it is about the circle. अभी ये sphere जो है, ठीक है, हाँ. जब हम spherical mirror बोलते हैं, तो just imagine that there is a sphere. I will explain you, then you will understand it very nicely. Okay, पहले आपको क्या imagine करना है? देखो बच्चों, this is a sphere. अभी ये मेरे पास blackboard 2 dimensional है. That's only one plane side. इसलिए मैं ऐसे sphere नहीं बना सकती हूँ. I have to draw a circle. But this is the shape of a ball. Ball होता तो it will be 3 dimensional. ठीक है? So just imagine this is also 3 dimension. ठीक है, but still we are taking one plane of it. और हमारे सारे एक्सपेरिमेंट्स अभी इसी प्लेन में चलेंगे. ठीक है? So this is there is a center. इसका जो सेंटर है, इसका क्या नाम होता है? बोलो, anybody knows? यहाँ पे आएगा ना सेंटर. हाँ, सेंटर. What is it called? C. Center of curvature. ठीक है? And there will be a straight line passing through the center. That is, it divides the sphere into 2 parts. That is known as the, क्या बोलते हैं इसको? Principal axis. I guess PALK. I guess it is, yeah, PAL, principal. Normally we use it for the principal. In the school we have the principal. The same spelling is for the principal axis. Is it visible to you? Riza? Clear दिख रहा है आपको सब? Yes बेटा? Yes, no? अब तुम्हारे आंसर्स में बहुत सारे यस है, तो तुम कब बोलते हो मुझे समझ में नहीं आता है. तो तुम है ना क्या करो, जब मैं पूछूं आप अनम्यूट करके जल्दी से यस बोल सकते हो. ठीक है? बिकॉज हम जो भी पूछते आप यस यस बोलते रहते हो, तो हमें समझ में नहीं आता कौन से क्वेश्चन को यस आंसर दिया आपने. So this is C, the center of curvature. The line passing through the center of the sphere is known as the principal axis. The distance between the center and this, that is the radius. ये होगा ना radius circle का? Radius है ना? इसको also C बोलते हैं. ठीक है? ये distance होगा C. ये है तुम्हारा पोल. Origin भी होता है यहाँ से.
इसको ओरिजिन भी बोलते हैं, पोल भी बोलते हैं। इस पार्ट और इस पार्ट के बीच में एग्जैक्टली इसका हाफ एक डिस्टेंस है। मीन्स कितना होता है, रेडियस अगर r है तो ये डिस्टेंस कितना है, r/2। इसका नाम क्या है, फोकल लेंथ। और ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं एफ, फोकस। तो r/2 इज इक्वल टू एफ, फोकल लेंथ को क्या कहते हैं, एफ। ठीक है, कॉपी एवरीथिंग डाउन फास्ट, जल्दी जल्दी करो, रफ सर्कल बना के कर लो, बाद में आप ना नोट्स ठीक कर लेना। क्योंकि क्विकली मुझे इससे आगे का बताना है आपको। तो व्हाट इज द, दिस इज अ स्फीयर। इसके बीच में जो सेंटर में से जो लाइन पास हो रही है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है सी, फोकस इधर है एफ, पोल इधर है पी। ठीक है, अभी ये रेडियस नहीं भी समझे तुम तो ओके, ये जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, आप ये कॉपी कर लो। ये रेडियस नहीं भी समझे तो ठीक है, बस सिर्फ आपको पता है कि ये सर्कल है और इतना पार्ट इसका रेडियस है और ये पूरा पार्ट डायमीटर है, इसके लिए मैं कह रही हूँ कि रेडियस है। अगर कोई सम में आपको रेडियस वाला सम आ गया, देन यू शुड नॉट वंडर कि अरे बाबा इधर रेडियस क्या है। इट इज ओनली सी, सी इज सेम एज रेडियस, सी इज इक्वल टू आर, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, क्लियर टू यू। अनम्यूट करके यस बोलो जल्दी। यस मैम। ओके, तब करो हम ये कॉपी किया आपने। ओके, नाउ ये जो हमारा स्फीयर था है, अब इसके अंदर इसमें क्या दिख रहा है आपको, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, क्या दिख रहा है, दिख रहा है नहीं। सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर और द कॉनकेव मिरर, ये इसी का एक पार्ट होता है, समझो हमने इसको कट किया। And as I said, we are going to coat on one of the sides with a paint. Okay, that will be something reflecting. Reflecting layer से हमने इसको पेंट किया, कोट किया, लाइक सिल्वर। तो वो दूसरा साइड जो होगा दैट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग। ओके, तो अगर हमने ये साइड को पूरा कोट किया तो कौन सा साइड रिफ्लेक्टिंग होगा, ये वाला इनसाइड। कल ही हमने बात की थी, इस टाइप के मिरर को क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। और अगर हमने सोचा कि हम अंदर की साइड को पेंट करेंगे, समझो ये वाली साइड को, बट अब इसका हो गया है तो हम ये साइड करते हैं। तो ये क्या हो गया,
convex mirror. This is your convex mirror and this is your concave mirror. ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? The outer side is reflecting, the inner side is reflecting, the inner side is coated, the outer side is coated. बट एक आइडियल सिचुएशन ऐसा होगा कि हमेशा आपको मिरर को इस पोजीशन में ही रखना है. तो जब इसकी सेंटर लाइन, सपोज यहाँ पे पोल फोकस है, तो इसकी सेंट्रल लाइन यहाँ से जाएगी. इसका पोल फोकस यहाँ है, तो इसकी सेंट्रल लाइन यहाँ से जाएगी, इसका पी इधर. ठीक है, ऑलवेज यू विल हैव इट लाइक दिस. You will have to keep your object over here, or the object over here. That will be on the left hand side. That will see further. इधर तक सबको समझ में आ गया? Okay? Any problem? No. So we'll do the next part. That is the diagrams. What are the different diagrams? अभी इसमें आपको अपना पेज जो है ना, उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल पकड़ो. बुक आपके पास ऐसी बुक होगी. ये ऐसी बुक है ना, इसको हॉरिजॉन्टल पकड़ो. ठीक है, होल्ड इट हॉरिजॉन्टल. और इधर ऐसे टेबल बनाओ विथ वर्टिकल कॉलम. ऐसे नहीं पकड़ो, आप ऐसे पकड़ो. ठीक है, ओके. और उसके आप हम टेबल्स बनाएंगे विथ 4 कॉलम्स एंड 6 रोज. ठीक है, और 7 रोज फॉर द टाइटल इज वेल. वी हैव 6 केसेस और ऊपर का टाइटल वाला लाइन. ये टाइटल वाला लाइन है. 1 2 3 4 5 6. हम ज्यादा नीचे नहीं जाते हैं, so that it's visible to all. ठीक है, मैं यहाँ कुछ नहीं लिख रही, डोंट वरी. Oh, we could have written, right? Right. सबसे पहले कॉलम में हम क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. दैट विल बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. सेकेंड कॉलम में होगा पोजीशन ऑफ द इमेज. पोजीशन ऑफ द इमेज. थर्ड कॉलम में होगा साइज ऑफ द इमेज. ये सब लिखना है आपको कॉलम्स बना के प्लीज. और फोर्थ इसमें नेचर ऑफ इमेज. और अगर आपको नहीं, आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो इट इज देयर ऑन पेज नंबर 164. अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे का ऐसा इसको कॉपी कर सकते हैं. और हम केस नंबर, सीरियल नंबर के लिए एक छोटा सा कॉलम दे देते हैं. सीरियल नंबर 1. ठीक है, उसके बाद भी हम दे सकते हैं 7 और 8 केस भी हम यही लिख लेते हैं. अगर हमें टाइम रहा तो हम कॉन्वेक्स लेंस के भी 7th और 8th केस कर सकते हैं.
but it all depends on how you are cooperating with me. चले, सबसे पहले क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ दी ऑब्जेक्ट. अगर आपका पोजीशन कहाँ है ऑब्जेक्ट का, सबसे पहले तो हमें, इतना बड़ा बनाऊं या छोटा बनाए तो दिखेगा आपको? थोड़ा थोड़ा स्मॉल बनाओ, बहुत बड़ा हो गया. दिख रहा है? यस. ये हमारा कॉन्केव मिरर है ना? और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है. ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. व्हाट इज द फर्स्ट केस? केस 1 में व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. व्हाट हैपेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी? अभी हम यहाँ पे इंफिनिटी तो नहीं बना सकते ना कि ये इतने डिस्टेंस पे इंफिनिटी है. So whatever the rays are coming from a very far off distance, they will be coming in straight lines like this. How they'll be coming? They'll be coming in straight lines. That shows that it is coming from a very, very far off distance. ठीक है? तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा बताओ? What happens? It will pass through the focus. आपको ना सिर्फ टेबल बनाना है, ये सब नहीं बनाना है, क्योंकि हमें अभी बहुत सारी चीजें आपको और भी डिस्कस करनी है. क्योंकि ये सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन के लिए अभी ये केसेस कर रही हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम में आपको समझ में आने वाला है नहीं, इसलिए आई हैव टू डू इट मोर देन वंस at least, and maybe 2-3 times. But the first time, at least you have to pay attention and try to cooperate and tell me if you're understanding or if you're not understanding it. Okay? तो हमारा सबसे पहला केस है when the object is at infinity, मतलब बहुत ही far off distance पे है हमारा ऑब्जेक्ट, और हमारा ये है spherical mirror. मिरर का क्या काम है? रिफ्लेक्शन करना. So it is going to reflect the light which is coming from a far off distance, और उसको रिफ्लेक्ट कहाँ पे कर रहा है ये? It is reflecting it back on the point F. On the point F. तो हमारा पहला केस है when the object is at infinity, the position of the image, मतलब इमेज कहाँ बनने वाला है? At focus. At focus. ठीक है? क्लियर? थर्ड चीज ये है साइज ऑफ द इमेज. अभी आपको ये कितना बड़ा दिख रहा है इमेज? बहुत ही ज्यादा छोटा. इतना छोटा, इट्स एज मच एज अ पॉइंट साइज. सो इट इज पॉइंट साइज. एंड नेचर ऑफ द इमेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? इट इज रियल एंड इन्वर्टेड. Real and inverted. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है. जब हम सेकेंड करेंगे केस, तो हमारा पोजीशन ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट थोड़ा करीब आएगा. अब हमारा इंफिनिटी पे नहीं है, थोड़ा कम दूर है बट कम दूर है. तो इट विल बी बियॉन्ड सी. तो सेकेंड हमारा केस होगा बियॉन्ड सी. तो हमारा सेकेंड केस जो है वो है बियॉन्ड सी. ये है हमारा फोकस F, ये है हमारा C सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हमारा ऑब्जेक्ट होगा बियॉन्ड C, माने थोड़ा सा बिहाइंड C. C के थोड़ा पीछे बनाती हूँ मैं इसको. ठीक है. विल गो स्ट्रेट एंड इट विल पास थ्रू द F.
and if it passes through the F, it will go straight. तो बना आपका इमेज यहाँ पर. कहाँ पे बनेगा आपका इमेज? Yes. Where it will be formed? What will be the position of the image? कहाँ पे दिख रहा है आपको इसमें? Where is the position of the image? Between F and C दिख रहा है ना? हाँ, so it will be between F and C. क्या कुछ भी प्रॉब्लम है इसमें? आपने तो मेजरमेंट नहीं लिए हैं. आप मेजरमेंट लेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे डायग्राम्स भी बनेंगे, परफेक्ट एकदम. हम तो अंदाजे से बना रहे हैं. दिस इज गॉट क्रूकेड ऑल्सो, so it is not going to be accepted. It has to be straight. है ना? इस पास में तो आपको लगेगा कि क्रूकेड जाती होगी लाइन. क्रूकेड नहीं जाती है लाइन, स्ट्रेट ही जाती है. बन ही नहीं रही स्ट्रेट लाइन. इसका हम नाम देंगे ए बी. जो हेड रहेगा उसका नाम है ए, और जो फुट है वो है बी. आई होप इट इज विजिबल. एंड इसका हेड जो है इन्वर्ट हो गया, अब नीचे आ गया, तो ए डैश है, और इसका फुट बन गया है बी डैश. और ये छोटा दिख रहा है कंपैरेटिवली, राइट? तो अभी साइज ऑफ द इमेज इज डिमिनिश्ड. ओके, इट इज गोइंग टू बी डिमिनिश्ड. रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है क्या? यहाँ तक कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज प्लीज मुझे बोलो, so I will explain it to you again. Yes, Abdullah and Riza, you have understood. I'll repeat before I erase this thing from the board. The first case wherein the object is at infinity, and since we cannot see the infinity, the rays coming in are from a far off distance, and they appear to be in straight line falling on the mirror. And these are all the cases for what type of mirror? Concave mirror. The rays come straight, and according to the first rule, it will pass through the focus. If it is coming in a straight line, it will pass through the focus. So all are coming through the straight line, that's why they will pass through the focus. In the second case, the object has come a little closer, but it is not very close. It is beyond C. You have your C over here. You have your F over here. So it is beyond C, a little ahead of C. So the straight line which is passing from here in a straight line, it will reflect and it will pass through F. ठीक है? And the other line which is passing from F, since it is passed from F, while reflecting it will go parallel to the principal axis. It has to go in a straight line parallel to the principal axis. The point where these 2 points meet is the point where you'll get your image. There you have to form your image. And since it is below the principal axis, it is going to be inverted. Hence, it is also known as in real and inverted. Real because it is on this side of the screen, mirror. It is in front of the mirror on the same side as of the object. Hence, it is a real image. Okay. Next क्या है आपका? इसमें point it is smaller than the object and it is real and inverted and it is
हैविंग अ पोजीशन इन बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी के बीच में खूबसूरती से इसने अपना लोकेशन बनाया है. सो इट इज परफेक्टली अकॉर्डिंग टू व्हाट आवर केसेस आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी. ठीक है, तो अगर आप रियली ये एक्सपेरिमेंट करोगे आपको यही पोजिशन मिलेंगे. ठीक है, क्लियर टू यू? नाउ वी गो टू द थर्ड केस. What is the third case? Now, this is your concave mirror. This is your principal axis. This is your pole. This is your focus. This is your C. You want me to write bigger? There is the object placed at C. Third case जो है हमारा उसमें just one sec, I have a message. Happens now. In the third case, the object is at C. Object is at C. So there is a straight line passing here. So since it is passing from it is passing parallel to the principal axis, where will the reflected ray pass from? The reflected ray will pass from F. If the incident ray is passing from F, where will the reflected ray pass from? Yeah, tell me. बोलो जल्दी. It will pass parallel to the. It will pass parallel to the. ये बहुत बड़ा बड़ा हमने C लिखा ना तो इसको बनाने नहीं आ रहा है. 2 मिनट. And tell me fast, everybody. ठीक है, विजिबल दिख रहा है आपको? इज इट विजिबल? मैं डबल डबल लाइन बना रही हूँ क्योंकि इट्स नॉट विजिबल. अब विजिबल है? या दिस इज ऑल्सो अ रे, सो इट इज गोइंग टू गो अहेड. ये इसका हेड है ए, इसका फुट है बी, इसका हेड है ए डैश, इसका फुट है बी डैश. इसमें क्या दिख रहा है आपको? द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट सी एंड वेयर इज द पोजिशन ऑफ द इमेज? इट इज ऑल्सो एट सी. बोथ ऑफ देम आर एट सी. एंड आपको ये भी नोटिस किया होगा आपने कि दोनों का साइज भी सेम है, सेम साइज, एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है, क्लियर? Now we come to the fourth case. What is the fourth case? Fourth case में क्या होगा? अभी हमारा ऑब्जेक्ट और थोड़ा करीब आएगा. इट विल बी बिटवीन एफ एंड सी. ये हमारा सी था ना,
So it will be between F and C. ये है आपका F, ये है आपका C. Your object is between F and C. Abhi, as usual, straight line passing will pass through the focus. Any line passing from the focus will pass here. ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा C इधर था. And now your object will be over here. This is your A, this is your B, this is your A dash, and this is your B dash. This is your F. दिख रहा है क्या F? This is your C. Clear to all of you? Fine. What happens here? In the fourth case, the object is between F and C. Between F and C. Object position is between F and C. तो image position क्या है? Beyond C. Beyond C. और size क्या है? It is larger. और मैग्नीफाइड बोल सकते हो, लेकिन फिर भी वो रियल और इन्वर्टेड ही है. ये चारों केसेस आप क्विकली नोट कर लो. लिख लिया आपने फास्ट? बिकॉज वी जस्ट हैव 4-5 मिनट्स. अभी हम फिफ्थ केस करेंगे, जिसमें क्या होता है कि अभी हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे आता है. दिस इज अवर फोकस, दिस इज अवर C. The object is at focus as usual. When it will pass through focus, और कैसे जाएगा? Through C. तो ये पूरी दोनों लाइंस आपको पैरेलल दिखेगी. दिख रहा है अभी? हाँ, दिस पार्ट. So these you can see parallel. अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है, it is at focus, the image is at infinity, it is highly magnified, क्योंकि अब इतने दूर है तो बहुत ज्यादा मैग्निफाइड भी बनेगी. एंड रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है. Now the sixth case. In the sixth case would be totally different. In this case, what will happen is your object is on between the pole and focus. ये है आपका concave mirror. This is your focus F. थोड़ा ऐसे बनाते हैं ताकि आपको पीछे भी जगह हो. ठीक है.
this is your F, this is your C, this is your object between P and F. ये इससे पास हुआ है और ये इससे पास हुआ है और ये यहाँ पर बन गया image. This is going to be a different type of a case in which the sixth diagram case is that the object is between pole and focus. It is behind the mirror. The position of the object is behind, image is behind the mirror. It is magnified, but it is virtual and erect. आपको मिरर में मिल रहा है मतलब virtual है, आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं. This is your AB, this becomes your A dash, B dash. So it is virtual and erect. ठीक है, all of you? So please note this, and that's very important.